ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਚੈਨ ਤੇ ਨੀਂਦ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਦਾਲਤ तो इस ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ 800 ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਤਰੀਕ 14 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਆ ਹਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ कि साडा साथ दिता जाए, जो फैसला कोर्ट का साडे हक च लिया जाए। तो ये आपका परिवार ये 84 के दंगों में यहाँ आया था? नहीं 84 के दंगों से रह रहे हो? कितने नहीं साल नहीं हो गए? साडी जदों वंड पई सी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, उस वेले तो सियाणे आण के रह रहे हैं, क्योंकि साडी इत्थे चौथी पीढ़ी होनी मेरे हिसाब नाल, तीजी चौथी पीढ़ी आ। जदों 84 वंड वेले दे आए पे, हुण देखो साडे सियाणे जिहड़े भी पाकिस्तान तो आए, जदों हिंदुस्तान पाकिस्तान बनिया सी, जे सानू उठाणे सी सानू उदों ही उठा दिंदे, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੋ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੁਆਟਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਟਰ ਆ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੰਨ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਆਟਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਆ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। दंगा पीड़ित परिवारों में से अब उधर तो भी आए ही, साडे कोई बहुत इधर रह गए, दंगा पीड़ित 84 च आए सीगे, कई इधर रह गए, कई वापसी चले गए दिल्ली, कई इत्थे ही रहन लग पड़े। सानू फिर इदां ही आ भी हुण तां साडी सरकार अगे यही बेनती आ भी आम पार्टी वाले कोल गए आ, हुण उन्हां ने सानू 27 तरीक तो अगे 14 तरीक दित्ती आ भी उन्हां दे अगे फिर असीं जावांगे भी 14 तरीक तो भी सानू अगे ਵਧਾ के की आ, सानू बेनती करके सानू अगे असीं हाथ जोड़ के बेनती करांगे सरकार अगे, ओ पंजाब सरकार अगे भी सानू इत्थे साडी जगह साडे हक च दिओ, साडी लिफ्टरियां बनाओ, सानू उजाड़ो ना, इत्थों सानू बसाओ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। में पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने एक पॉलिसी लेके आए थे जिसमें ये कहा गया था कि जो जिनके पास 12 साल से कब्जा है उनको ये ज़मीनें जो है वो बहुत गरीब लोग हैं, 2-2 मरले के घर हैं उनके, और उन्होंने वहाँ मेरा ख्याल है कि अपनी मेहनत की कमाई भी लगाई है और रहने लायक घर बनाए हैं। तो मेरी सरकार से, और देखो जो लीगल एंगल है उसको हम परसू करेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और सरकार को भी ये चाहिए कि ये जो छोटे गरीब लोग हैं
इनका घर ना उजाड़े, क्योंकि 500-700 घर वहाँ है। 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ 80% ਘਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ आवास योजना के तहत बने हैं और लाखों करोड़ों रुपए दिए मैं तो गए। अगर देखो वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी पूंजी भी लगा रखी है, क्योंकि आदमी जब भी कहीं घर बनाता है तो वो ये सोचता है कि मैं काम काज से जब वापस आऊँगा तो अपने घर में आराम से रह सकूँगा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो सारे बनाते हैं। तो मेरी एक तो सरकार को गुजारिश है और दूसरा हम लीगली इसको परसू करेंगे कि ऐसा मत करो, क्योंकि 500 घरों का उजाड़े का मतलब ये हुआ कि 5 से 10 हज़ार लोग जो है वो डिस्टर्ब होंगे, कहीं ना कहीं वो कहीं रहने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि ये जो भगवंत मान सरकार है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन गरीब लोगों का उजाड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बात की जाए तो लोगों ने कहा है कि हमसे जो ज़मीन के रुपए बनते हैं वो ले लिए जाएं, पावरकॉम को वो रुपए देने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हमने 12 साल की एक स्कीम लेके आए थे पिछली सरकार से, लेकिन सरकार बदल गई। मैं तो ये कहूँगा कि उसी को परसू किया जाए और इन लोगों को राहत दिलाई जाए। देखिए, ये बड़ा एक गंभीर मामला है, पंजाब और ख़ासकर जलंधर के अंदर गरीबों से रिलेटेड है। तो उनको जो ज़मीन दी गई है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत घर बने हुए हैं, उन्होंने अपने भी खर्चे लगा करके अपने आप को, अपने जीवन को ऊंचा करने के लिए, रहने के लिए छत का जो प्रबंध किया है, तो ये कांग्रेस पार्टी भी ये पॉलिसी लेकर के आई थी कि जिनको 12 साल के करीब समय है उनको दिया जाना चाहिए। तो हम तो चाहते हैं कि उनको जो कहाँ से भी उनको कोई परेशानी ना हो, उनको अलॉटमेंट और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए और भी कुछ प्रबंध करना हो तो वो सरकार को करना चाहिए। किसी गरीब का उजाड़ा, किसी आम व्यक्ति का उजाड़ा, उनको कोई परेशानी में डालना ये सरकार पक्ष में अच्छा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर अम्बेडकर नगर ये लगभग 50 साल पुराना ये कॉलोनी है। मेरे पिताश्री स्वर्गीय मनमोहन कालिया जी, उनके वक्त जब वो पूर्व विधायक थे, वहाँ मंत्री थे, तब ये कॉलोनी जो है उस वक्त जो है झुग्गी झोपड़ी थी यहाँ, तो बसाए गए वहाँ। फिर जब बाढ़ आई 1988 में, तब भी इनको सहायता दी। इनका जो है फिर है कि भाई कोर्ट में केस करके इनके जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगे, ठीक है। फिर समय के बाद जो है कि भी इनको गवर्नमेंट स्कीम्स में पैसा मिला और फिर पक्के मकान जो बने हैं वहाँ पे। प्रधानमंत्री आवास योजना से भी बने हैं और इसी तरह दंगा पीड़ा जो है, उस वक्त इनको 2-2 लाख रुपए चेक दिए गए थे 1984 में, तो उनके द्वारा उस वक्त 2 लाख की काफ़ी वैल्यू थी। तो देखा जाए तो तब वहाँ जो उन्होंने भी मकान बनाए हुए हैं। तो इस तरह से ये कॉलोनी लगभग 1000 मकान जो है यह बना हुआ है और एक मकान में 10-10, 15-15 लोग रहते हैं। जो 50 साल पहले आप देखिए बच्चा था, अब वो मिडिल एजेड हो गया है। तो इस नाते से मेरी प्रार्थना है कि भी इनको, गरीब लोग हैं, और ये 2014 में जब इनके खिलाफ केस हुआ तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, उनके घर लेके गया, उनके ऑफिशियल बेंगलोर में, मैं इनको लोगों को। तो तब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने फिर चेयरमैन पावरकॉम को फ़ोन किया कि इनको ना जो है डिसलॉज किया जाए। तो अब 10 साल हो गए, इनको कुछ नहीं कहा। अब जो है कि भी इनको अब यह पता चला कि भी नोटिस आने शुरू हो गए हैं। तो मेरी ये प्रार्थना है कि भी ये कॉलोनी जो है, इसमें जो पावरकॉम की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसमें कोई बाधा नहीं आती है। लोगों को डर सता रहा है कि लतीफपुरा जैसा माहौल वहाँ ना बन जाए। मैं कह रहा हूँ कि भी वहाँ पे जो है भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कोई भी इंटरप्शन नहीं हो रही, बेरोक टोक वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।